Good afternoon and welcome to another episode of Inspire India. And this is a show where we try to honor those COVID heroes who are among us, ordinary citizens who are trying to do their bit in this time of crisis. We repose our faith in the indomitable spirit of mankind to survive beating all odds. Even as our country faces this unprecedented pandemic, there are heroes among us who have stepped up to help out and tide over this crisis as well. In fact, on today's show, we are showcasing two such special guests. The first one is Sachin Deoli from Bhopal-based NGO Arushi. They're distributing food to the poor and the destitute, and they are also helping out in several other ways. We'll find out more during the course of this show. And our second guest is Iqbal Mamdani of the Mamdani Foundation, who's helping to cremate unclaimed bodies of COVID patients in Mumbai and Greater Mumbai region. I welcome both Sachin and Iqbal Mamdani to this show. And thank you so much to both of you for taking out your precious time. You're doing so much at this time of crisis. So thank you so much for taking out your time for us and joining us on this show on Mirror Now. First, let me go across to Sachin Deoli, who is in fact from NGO Arushi. Now, let me just introduce a bit and talk a bit about what Arushi is doing. The NGO Arushi is based out of Bhopal, as we said, and they are doing multiple things to make these tough times slightly bearable for the people who have been affected. The NGO started with distribution of food for the poor, and they are also distributing water, tea and snacks for on-duty cops. But of late, they have started conducting online classes for specially able children, and they are also providing oxygen concentrators for free to those people who need it the most. Mr. Deoli, thank you so much for joining us here on Mirror Now. And what we can in fact see is that your NGO is helping out in a number of ways. Tell us, how exactly did you think of starting this initiative? Was it something that you were doing because you have an NGO already? Were you involved in this kind of work last year as well? We'll be going across to Mr. Deoli in a bit, but as we said that the NGO Arushi in Bhopal has in fact been helping out people in multiple ways, from giving out oxygen concentrators for free, from conducting online classes for specially abled, and also by distributing food to the underprivileged and the destitute. So the NGO has in fact been working in several ways to help out people amid this crisis, amid this unprecedented pandemic. And as we know that Bhopal is also one of the worst hit when it comes to COVID crisis in the country. Let me go back to Mr. Sachin Deoli. Mr. Deoli, sorry, there was a bit of a technical issue there, but let me pose the question that I asked you once again. Is there something that you found more challenging this year? I'm sure you did a lot of philanthropic work last year as well, but was this year's COVID wave a bit more challenging when it comes to helping out people amid this crisis? Right, we will be going back to Mr. Sachin Deoli in a bit. Let me first go over to Iqbal Mamdani now and talk about his initiative before we talk to Sachin Deoli. Now, Iqbal Mamdani is a senior journalist who has activated his NGO, the Mamdani Foundation, last year during the pandemic to extend help to people. He realized that due to the fear, many people were not even claiming the bodies of their relatives who were dying because of COVID. The Mamdani Foundation decided to conduct last rites of such bodies in the entire Mumbai metropolitan region. So it's not just Mumbai, but in Greater Mumbai area as well, where they have been working. And so far, they have cremated 1,300 bodies, and they have also provide ambulance services. Let me go across to Mr. Iqbal Mamdani, who's joining us this afternoon. Mr. Mamdani, thank you so much for speaking to us here on Mirror Now. Please tell us, I'm sure the kind of crisis that we have seen in terms of overburdened crematoriums this year was not a challenge that we saw last year. Very, very tragic, unfortunate scenes.
that as a country we have witnessed this time around. What exactly triggered in you to start this initiative, to actually think of, giving some sort of a dignity to, the unclaimed bodies, unclaimed COVID patient bodies? So we'll be going across to Iqbal Mamdani as well. And, as we have in fact been saying that there have been a lot of NGOs which have been working round the clock during this pandemic in order to help out people, in order to help out those who need it the most, whether it comes to actually helping in terms of cremating bodies which have not been claimed, COVID bodies which have not been claimed, or whether it is in terms of giving food to those, the underprivileged, or giving oxygen concentrators. Even oxygen is something, as we know, which has become a major critical point in the COVID fight this year. So there are NGOs who've been working on a plethora of issues, and we are featuring two such NGOs today. And these are NGOs, and these are run by people who have in fact gone out of their way, who have stepped up. They are ordinary citizens who are running small NGOs or small foundations who have actually taken up this mammoth task, because there is a major crunch on health infrastructure in our country right now as we know it. And in order to help out, they have stepped up and come forward in order to help those people who cannot afford to help themselves, those who need a bit of assistance. They have come forward to help out such cases as well. So if we talk about the first case, the NGO Arushi, let me tell our viewers once again how it works. So basically there are free oxygen concentrators which are provided to patients by the NGO Arushi. They are based out of Bhopal. And as we know, Bhopal is in fact one of the worst hit when it comes to corona cases in Madhya Pradesh. We've also seen how the government there has in fact been going out of their way to make sure that the curve is spread. The spread is in a way curbed rather, but these are people over here. There are oxygen issues which have shown up there as well in order to help out people. The NGO Arushi has been working in Bhopal for this reason. Let me go across to Sachin Deoli now. We'll probably have fixed the connection with him at the moment. Mr. Deoli, can you hear me? Yes, मैं सुन पा रहा हूँ. सुन रहा हूँ. जी शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. आपसे बात करने में थोड़ी दिक्कत आई, बट नॉनदलेस अभी जैसे आप हमें सुन सकते हैं. मेरा सवाल आपसे था, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं. आपकी एनजीओ इतने इस टाइम पे इतना अच्छा काम कर रही है. अगर आप हमें थोड़ा बता पाए कि किस तरह से इस वक्त, इस बार की जो हम कोविड वेव देख रहे हैं, वो आपके लिए और भी चैलेंजिंग हुआ होगा, आपके एनजीओ के लिए और भी चैलेंजिंग सिचुएशन रही होगी पिछले साल के कंपैरिजन से, क्योंकि इस साल में हमने जैसे देखा कि काफ़ी चुनौती थी सरकार के लिए भी, और इवन एज एन एनजीओ आई एम श्योर यू फेस्ड द सेम एज वेल. सो हाउ वाज वर्किंग दिस ईयर, हेल्पिंग आउट पीपल दिस ईयर, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपीरियंस्ड लास्ट ईयर? जी हाँ, मैंने शुरुआत में कहा था कि पिछले साल से स्थिति काफ़ी बदल गई है. शुरुआत में तो किसी को पता नहीं था कि ये हम किस दिशा में जा रहे हैं और इसका अंजाम क्या होने वाला है. समय काफ़ी निकल गया, और जैसा कि आपने बताया, हम लोग दिव्यांग बच्चों के साथ यहाँ भोपाल में और मध्य प्रदेश में काम करते हैं. शुरुआत में हमने ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की शुरू करी, और जो अभी भी चल रही है. बच्चों का जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके साथ थोड़ा भी गैप होता है तो उनकी पोजीशन बैक हो जाती है और पीछे चले जाते हैं. और धीरे-धीरे इस साल जैसे इसके दूसरा वेव आई है, तो ये कुछ अलग है, और इसमें अभी और क्या होने वाला है, कैसा क्या होगा, चैलेंजेस बहुत सारे हैं. इस बार हमने कुछ आगे बढ़कर जो कि ज़रूरतें थी इस समय की, उस पे काम करना शुरू करा. कुछ हमारे वॉलंटियर्स हैं, आरुषि के काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं जो अलग-अलग जगहों पे रहते हैं, और वो समय-समय पर आरुषि की मदद भी करते हैं. तो कुछ जो भारत के बाहर भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं,
सिंगापुर में हैं और भारत में कई जगह हैं, उन्होंने मिलके हम लोग ने एक विचार नया विचार लाया कि जो पेशेंट्स हैं इस बार उनको कई तरह की ज़रूरतें पड़ रही हैं, हॉस्पिटल में वो जा रहे हैं, और जो पेशेंट्स घर में हैं उनको कुछ ज़रूरतें घर के हिसाब से पड़ रही, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसकी बात आप, तो हमने कुछ परचेज किए वॉलंटियर्स की मदद से, उन्होंने हमारी। तो ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, हम कहते हैं कि भोपाल में जिनको ये ज़रूरत है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क ये उपलब्ध कराई जाए, और काफ़ी सारे कॉल्स हमारे पास डेली आते हैं और हम जैसे उनकी मदद कर पाते हैं मदद करते हैं, और डॉक्टरी सलाह तो उनको लेना ज़रूरी है, डॉक्टर जैसा बोलते हैं उसके आधार पर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो लगाते हैं। जी जी, और मुझे आपसे ये पूछना था कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आप लोग फ्री दे रहे हैं, वो आप लोगों को मतलब उससे कोई मदद मिल रही है या सरकार से कोई मदद मिल रही है इस बारे में? क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन इस बार एक क्रिटिकल इशू है। पिछले साल के कंपैरिजन में ऐसे इश्यूज हमने देखे नहीं हैं। हॉस्पिटल्स आपके पास क्या ज़्यादातर जैसे अगर आप लोग फ्री ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देते हैं, ऐसे कई लोग अभी भी आ रहे हैं आपके पास जो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रहा है या घर में दिक्कत आ रही है, बाहर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिलने में मुश्किल हो रही है? किस तरह के पेशेंट्स, जब पेशेंट्स के फैमिलीज आपके पास आते हैं, किस तरह के स्टोरीज वो बयान कर रहे हैं? देखिए, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है और क्रिटिकल कंडीशन है तो वो तो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनका इलाज हॉस्पिटल में हो रहा है। कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो इलाज के बाद अपने घर आए हैं, या कि उनको ऐसा लगता है कि उनको शुरुआती लक्षण है, या हॉस्पिटल जाने से पहले जो एक दौर आता है कि अगर हम जो वो अपने घर में कुछ इलाज कर सकते हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार अपने तौर पे कर रही है, बहुत सारे स्वयंसेवी लोग अपने-अपने तरीके से कर रहे हैं। तो आरुषि को भी कुछ हमारे वॉलंटियर्स ने मदद करी है, फंड-रेज़िंग करी है उन्होंने, तो हमने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर के उन पेशेंट्स को लगाना शुरू किया जिनको ये जो इस मशीन के साथ अपना कुछ समय निकाल सकते हैं, और उस दौरान अगर उनको लगता है कि उनकी कंडीशन ऐसी है तो वो अस्पताल में जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि कई अस्पतालों में या हॉस्पिटल में बेड्स खाली नहीं है, मगर उस दौरान पेशेंट्स अपने घर में रह के अपना इलाज इन कंसंट्रेटर्स के माध्यम से कर सकता है। तो उस दौरान के लिए थोड़े समय के लिए और आकस्मिक चिकित्सा के लिए ये कंसंट्रेटर हम उपलब्ध कराते हैं। जी। जी सचिन जी हमारे साथ बने रही हैं। लेट मी ऑल्सो गो अक्रॉस टू आवर अदर गेस्ट मिस्टर इकबाल ममदानी. Mr. Mamdani, as thank you so much for joining us on this show. And as what the kind of work that your foundation is doing, again, this is a challenge that we have not seen last year. Very tragic scenes that have come in from across the country where crematoriums are overburdened, they are overflowing. And your foundation specifically works in terms of giving dignity to the dead and especially those COVID bodies which are lying unclaimed. What inspired you to actually start this initiative? तनीमा जी, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल की जब बात हम करें तब हालात इतने बुरे थे कि हम समझ नहीं पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट रहा हूं तो मुझे ये पता है कि हालात जब बेकाबू होते हैं तो चाहे वो सरकार हो या हम मीडिया हाउसेज हो, सबके लिए एक चैलेंज होता है। तब हमने सोचा कि क्यों ना एक हमारी टीम जो है लगातार इस काम को शुरू करे। उसका मामला ऐसे सामने आया था कि कोविड को लेकर के एक महानगर पालिका यानी कि एमसीजीएम ने एक जीआर निकाला था जिसमें बरियल की जगह पर क्रिमेशन करने का काम ऑर्डर किया गया था मुंबई के हर बॉडीज का। तो पहली जो मुस्लिम बॉडीज थी जिसको बरियल की जगह क्रिमेशन किया गया, जिसके बाद काफी एक हंगामा हुआ, सरकार ने उससे मध्यस्थता हासिल की और उस जीआर जो था उसे रिवर्ट करके बरियल परमिशन दी गई। लेकिन चैलेंज ये था कि बरियल के लिए आएगा कौन। तो जो हमारे सर्कल्स के लोग थे उन्होंने ये कहा कि ना हम क्यों ना आगे चढ़ करके ये काम करें। तो जब शुरुआत में हमने ये काम शुरू किया तब काफी चैलेंजेस हमारे लिए ये थे कि जब हम हॉस्पिटल्स में जाते थे तो जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस थी वो बंद थी, दूसरा जो गवर्नमेंट एम्बुलेंसेस थी वो काफी कम थी। तो जब वो बॉडीज लेके जाते थे, चाहे वो शमशान हो या कहीं कब्रिस्तान हो, तो उसमें काफी वक्त लगता था। तो एक एक बॉडीज को निकालने के लिए 18 से 20 घंटे लगते थे, कभी 16 घंटे लगते थे। इस तरीके से फिर हमने जो
कई एम्बुलेंसेस के लोगों से संपर्क किया और उनसे कहा कि आप हमें एम्बुलेंस दीजिए, हम आपको मंथली जो आपका रेंट रहेगा वो देंगे, लेकिन वो देने को तैयार नहीं थे। फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना जिनके पास इस तरह की एम्बुलेंसेस हो, जो खराब हो चुकी हो, बंद हो और वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस तरीके के एम्बुलेंसेस को हमने लिया। 3-4 दिन में पुलिस की कुछ मदद से कुछ अलग अलग मैकेनिक्स को बुला करके उसे बनाया और हमने काम शुरू किया। तो शुरुआत में तो हमने सिर्फ मुस्लिम बॉडीज का काम शुरू किया था। जब हम हॉस्पिटल्स जाने लगे तो हमको पता लगा कि इतनी बॉडीज वहां पर पेंडिंग्स पड़ी है, लेने वाला कोई क्लेमर नहीं है। तो हॉस्पिटल्स के लोगों से हमने पूछा कि जो हम बॉडीज निकालते हैं और इतनी बॉडी है तो कितनी मौतें हो रही है। तो उसने कहा सर मौतों का सवाल नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुस्लिम बॉडीज को कोई लेके जा रहा है लेकिन नॉन मुस्लिम बॉडीज को लेने वाला है नहीं यहाँ पर। तो उस दौरान हमने डॉक्टर से बात की कि अगर हम इनका अंतिम संस्कार कराते हैं तो हॉस्पिटल हमको क्या मदद करेगा। तो ये सुनकर के वो काफी खुश हो गए कि अगर जेन्युइनली आप कराओगे। हमने कहा बिल्कुल कराएंगे। तो हमने उस वक्त मुंबई के जो हमारी टीम थी, मुंबई के एक प्रमुख कब्रिस्तान के साथ मिलकर के हम ये एनजीओ हमारा काम कर रहा था। तब इस तरीके से हमने हिंदू बॉडीज को लेना शुरू किया। शुरुआत में इलेक्ट्रिकल या गैस पे ही जो है वो चैम्बर के अंदर अंतिम संस्कार किया जाता था। तब हमने एक एक करके इसको काम को शुरू किया और आज अभी तक ये मानिए कि 1300 से ज्यादा बॉडीज का हमने काम किया है। साथ में वो 800 से ज्यादा हिंदू बॉडीज है, 500 से ज्यादा मुस्लिम बॉडी। लेकिन इस पीरियड में हमने एक चीज और भी मार्क की थी कि कुछ ऐसी अननोन, अनक्लेम्ड और लावारिस बॉडीज पड़ी है जिसका कोई क्लेमर नहीं है और मुंबई पुलिस जो है उसका अंतिम संस्कार कराना चाहती है, लेकिन इस तरह की कोविड पोजीशंस के अंदर वो कर नहीं पा रही है। तो हम लगातार पिछले कुछ महीनों से इस तरीके का प्रयास कर रहे थे कि जितनी बॉडीज मुंबई पुलिस के पास है वो लेकर के उसका भी अंतिम संस्कार हमारी संस्था कराए, जिसको लेकर के मुंबई जॉइंट कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल से भी हमारी मुलाकात हुई और उनको हमने जब बताया तो उसने कहा कि बिल्कुल सही बात है, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम इन सारी चीजों को लेकर के आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद अब लगातार मुंबई पुलिस जो है सारे ही एसीपी को उसने ऑर्डर्स पास किया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से इस बॉडीज को जो अनक्लेम्ड है उसको फौरन जो है जिस मजहब का है उस धार्मिक स्थिति से जो बनता है उस अंतिम संस्कार किया जाए। तो अभी अगर हम सिर्फ मई मंथ की बात करें तो मोर देन 40 बॉडीज जो है वो हमने हिंदू और मुस्लिम जो है बरियल और क्रीमेट कराया है। मुंबई पुलिस अब ये मान रही है तकरीबन 200 से ज्यादा और बॉडीज है जिसको हम ये मान रहे हैं कि 10 से 15 दिनों के अंदर इसका क्रीमेशन या बरियल किया जाएगा। जी इकबाल जी, जैसे आज ईद का त्योहार भी है और आप इस टाइम पे एक्चुअली हमारे साथ बात कर रहे हैं, आप मतलब बिकॉज ये एक इतना इम्पोर्टेंट इशू है, जैसे हम देख सकते हैं कि इस टाइम पे ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो हमारे देश में अभी हम देख सकते हैं और इसलिए अभी इस टाइम पे व्हाट इज़ द मैसेज जो आप देना चाहते हैं आज के ओकेजन में भी, और अगर आप कुछ मतलब किस तरह से ये इनिशिएटिव को आगे लेके जाना चाहते हैं? तनीमा जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम जर्नलिस्ट लोग हैं जो दुनिया खुशियां मनाती है और हम स्टूडियोज में या बाहर रह करके काम करते थे, तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कल रात भी देखिए एक कॉल आया था तकरीबन 1:30 बजे, तो वहां से लेकर के सुबह 10 बजे तक हम एक बरियल ग्राउंड के अंदर थे जहां उस फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, किस तरीके से काम करना है, क्या करना है। अब इन सारी ही चीजों को लेकर के हमारी संस्था का ये मानना है कि ईद भले ही 4 घंटे 8 घंटे बाद या एक दिन बाद हम हमारे परिवार के साथ मना सकते हैं, लेकिन जिसका इररिपेरेबल लॉस है, जो व्यक्ति कभी उनके जीवन में लौट के नहीं आएगा, इस दुख की घड़ी में कम से कम हमारी संस्था उनका सहयोग करेगी, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो हमारी संस्था के साथ में लगातार एक पत्रकार संघ जो है और पत्रकारों की टीम है वो इसके अंदर प्रयास कर रही है। साथ ही साथ दूसरी एक हमारी जस्ट स्माइल फाउंडेशन है। ये हम 3 संस्था मिल करके अब इस कार्य को कर रहे हैं और हमारी चाहत ये है कि इस महामारी से किसी तरीके से हमारा शहर, हमारा देश जो है वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए। और इस बाहर आने की एक ही वजह है कि हमारी जिस तरह के जो लोग हैं वो बाहर निकल के हमारे समाज में काम करेंगे, लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि आपको संभलना है, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है उसको आपको फॉलो करना है। अगर कोई मदद चाहिए तो हमारे 24/7 नंबर्स चालू हैं, किसी भी तरीके से मुंबई के अंदर आप हमसे बात कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग महाराष्ट्र में कई एनजीओ है जो खुल करके अभी काम कर रही है, लोगों की मदद कर रही है। तो आम लोगों को भी चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने एसओपीज दी है उसको वो फॉलो करे और ज्यादा बाहर न निकले। और ये भय का जो माहौल था वो पिछले साल के मुकाबले अभी काफी कम है। लोग अब अपने प्रियजनों के डेड बॉडीज में या इस तरह के अंतिम संस्कार में आने लगे, ये तो एक अच्छी साइन है।
लेकिन लोगों को और भी थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए, जिस तरीके से हम मान रहे हैं कि थर्ड वेव आने की उम्मीद है और जिसको लेकर के सरकार भी तैयार है, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल। इसी तरीके से जनता को भी सतर्क रहना चाहिए और इसका एसओपीज को फॉलो करना चाहिए। रवीना जी। सचिन देओली जी, आपके पास अगर वापस जाए तो अगर आपसे हम ये पूछे कि किस तरह का मदद आपको लगता है कि एक एनजीओ वर्कर के हिसाब से आपको लगता है कि इस बार स्पेसिफिकली इस कोविड वेव के चैलेंजेस को नज़र रखते हुए और जो आपने एक्सपीरियंस किया है जब आपने लोगों से बात की है, क्या सतर्कता और भी होनी चाहिए और किस तरह की मदद या एड आपको लगता है कि सरकार को नज़र में रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू एनजीओज और पीपल वॉलंटियर्स हु आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड? या अभी हो क्या रहा है कि कई ज़रूरी चीज़ें भी रुकी हुई हैं, जिसके लिए जो लोग बाहर जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का निकलना ज़रूरी है पूरी सावधानी के साथ और सब तरीके के अपनाते हुए, प्रोटोकॉल को अपनाते हुए कुछ लोगों का निकलना ज़रूरी है। हमारी भी कोशिश है कि हम ऐसे लोगों तक पहुँचे, चूँकि हम जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं और दिव्यांग बच्चों के साथ काम करते हैं और ये बच्चे करीब 1.5 साल से या 7 साल से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग अलग तरीके से इनसे जुड़े हुए हैं। जैसा पता है आपको, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मगर प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, जबकि ज़रूरत है, काफ़ी ज़रूरत है, मगर अभी समय ऐसा है तो हमारी कोशिश है कि हम किसी तरह समय रहते या जब भी ऐसा मौका मिले, बीच-बीच में जब ऐसा समय आता है, उनसे हम मुलाकात करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें उनको बताते हैं ताकि जो भी उनके साथ काम किया जा रहा है वो पीछे ना जाए। ज़रूरतें उनके पास भी है, कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इस दौरान इन सबके पास भी काम उनके पास नहीं रहा है। तो हमारी कोशिश है कि उन तक जैसे भी जो उनको ज़रूरत है उन तक वो मदद पहुँचाई जा सके। हम लोग कोशिश करते हैं कुछ राशन है उनके पास पहुँचाया जा सके, कुछ कपड़े हैं जो इस बीच हमको मिलते हैं या कहीं से कोई हमारी मदद करता है या हमारे पास है तो हम उन तक पहुँचाते हैं। और जो और भी वॉलंटियर्स हैं या कि ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो लोग काम कर रहे हैं, उन तक भी हमारी कोशिश है कि हम अपने तरीके से उन तक पहुँच पाएँ। एक हमारा प्रयास अभी शुरू किया है कि व्यवस्था बनाने में जो पुलिस बल लगा हुआ है, उस सड़क पे काफ़ी समय अपना व्यतीत करता है, गर्मी का मौसम है, समय ऐसा कठिन है, तो उन तक हमारे पहुँचने की कोशिश है कि उन तक हम कुछ ज़रूरी चीज़ें पहुँचा पाएँ। तो ये छोटे-छोटे प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जैसी-जैसी चीज़ें हम तक आती हैं, एक हमारी हेल्पलाइन चलती है, जिसके माध्यम से हम जो डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको कोई अपने शहरों में कोई दिक्कत आती है, तो वो हमसे संपर्क करते हैं। हम या अगर फ़ोन पे मार्गदर्शन कर पाते हैं, तो उनका मार्गदर्शन हम फ़ोन पे करते हैं, अन्यथा जो भी उस शहर के लोग हैं, जो भी प्रशासन है, वो राइट। उनसे संपर्क करके उन तक हम कोशिश करते हैं कि कुछ उन तक सहायता पहुँच पाए। जी। राइट, सचिन देओली जी और इकबाल ममदानी हमारे शो में आज ज्वाइन करने के लिए और आपका कीमती वक्त निकालने के लिए थैंक यू सो मच। और बोथ ऑफ यू आर इन फैक्ट डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब अमिड दिस क्राइसिस व्हेन पीपल नीड द मोस्ट हेल्प at this hour. Thank you so much for joining us on the show today and talking about the fantastic work that you're doing.